Hello everyone, welcome to the Science of myself Shreyas Patel, and today we are going to discuss about analysis of controlled pharmaceutical substance or controlled pharmaceutical drugs. In controlled pharmaceutical substance or drugs, we will going to discuss about barbiturates and benzodiazepines. So particularly in this video, we will see about barbiturates. So first of all, what is controlled substance? A controlled substance is generally a drug or chemical whose manufacture, possession, and use is regulated by the government, such as illicitly used drugs or prescription medications that are designated by law. कंट्रोल सब्सटेंस मीन्स कि कोई भी ड्रग और केमिकल जिसका मैन्युफैक्चर पोजीशन एंड यूज गवर्नमेंट रेगुलेट करता है सच एज इलिसाइटली यूज ड्रग और उसमें प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स भी हो सकती है. इंट्रोडक्शन. In addition to the drugs from illicit source, the forensic scientists will sometimes be fed with casework involving samples diverted from the legitimate sources such as commercial source. Of these, perhaps the most significant are barbiturates and benzodiazepines. Both are found under a wide variety of trade names, but the approach to their analysis is broadly similar, either when the material is encountered in the native dosage form or when it is a part of drug mixture. So, forensic laboratories cannot limit the search for a cause of death to abuse drug only. Many individuals die from overdose of prescription drugs or OTC medications. OTC means over the counter. Over the counter medications means drugs which doesn't require prescription. Such deaths are sometimes suicides, but many are accidental. In the latter case, they may occur because of the medicinal error, such as taking the wrong drug or the wrong dose of the right drug. Many forensic chemistry and toxicology laboratories are capable of post-mortem identification of wide variety of medicinal agents. Post-mortem identification of wide variety of medicinal agents. Increasingly, death involve combination of drugs. कई बार ऐसा होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग की वजह से भी डेथ होती है. तो उस टाइम पे फोरेंसिक केमिस्ट एंड टॉक्सिकोलॉजिस्ट हैव टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ ड्रग्स वर टेकन बाय द पर्सन. तो कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग में प्रिस्क्राइब ड्रग भी हो सकती है और इलिसाइट ड्रग भी हो सकती है. सो दिस ट्रेंड और कंसेप्ट इज नॉन एज पॉलीफार्मेसी. पॉलीफार्मेसी क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स की वजह से भी डेथ हो सकती है. तो मिनिमम ऐसे 5 ड्रग के जो इंटरेक्शन करके साइड इफेक्ट्स देगी और इट कैन लीड टू द डेथ, तो उसको हम बोलेंगे पॉलीफार्मेसी. फॉर एग्जांपल, पोस्टमार्टम ड्रग्स कैन माइट रिवील alcohol, diazepam, and zolpidem. Alone, any one drug would not cause death, but in combination, such drugs can become much more dangerous. Then the sampling of barbiturates and benzodiazepines. So when a seizure of pharmaceutical drugs is made, it may comprise a single dose unit or many tens or hundreds of thousands of units. जब सीजर्स ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स होता है तो ऐसा हो सकता है कि या तो सिंगल डोज मिले या तो मल्टीपल्स ऑफ 10, मल्टीपल्स ऑफ 100 और 1000 यूनिट्स मिल सकते. तो हम सारे के सारे सैंपल्स तो एनालिसिस नहीं कर सकते, तो कुछ ऐसे रैंडम सैंपल हमें चूज करने पड़ेंगे कि जो हम एनालाइज करेंगे. So the number to be analyzed depends upon the legislative system in which the scientist is working, but the following is recommended by the United Nations Drug Control Program for the commercially produced drug. अगर एट द टाइम ऑफ सीजर मैं 1 से 50 यूनिट्स के बीच में सैंपल सेज करता हूं, तो मुझे 50% ऑफ दैट सैंपल और मैक्सिमम 20 मुझे रैंडमली चूज करना है और उसको एनालाइज करना है. फिर अगर जो सैंपल सेज हो जाए वो 51 से लेके 100 के बीच में है, तो मुझे 20 सैंपल एनालाइज करना है. देन अगर सैंपल 1012 1000 यूनिट्स के बीच में है, देन I have to analyze 30 samples, and if the sample found is greater than 1000 units, then the square root of the rounded to the nearest integer should be analyzed. क्या है, 1 से 50 सैंपल हो तो 50% ऑफ द सैंपल और मैक्सिमम 20. अगर 51 एंड 100 के बीच में है तो 20.
अगर 101 एंड 1000 यूनिट्स के बीच में तो 30 सैंपल्स एनालाइज करने हैं, और अगर 1000 यूनिट्स से ज्यादा है तो स्क्वायर रूट ले लो, और इज इक्वल टू जितने आएंगे नंबर वो आपको एनालाइज करना है. नाउ लेट सी अबाउट बारबीट्यूरेट्स. Slang name of barbiturates. Barbiturates also known as yellow jackets, reds, blues, armies, and rainbows. Slang name means street name. Barbiturates are white crystalline odorless powder with a faintly bitter taste. फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? व्हाइट है, क्रिस्टलाइन है, ऑर्डरलेस पाउडर है विद द bitter taste. They are used in the psychiatric disorder, epilepsy and strychnine poisoning. तो ये एक कॉमन स्ट्रक्चर है बारबीट्यूरेट्स का. सेकंड बारबीट्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर है, एंड थर्ड इज वेरेनल. तो फिफ्थ पोजीशन पर है बारबीट्यूरेट्स के स्ट्रक्चर में R1 एंड R2 एक दो फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं, तो जो हर एक बारबीट्यूरेट डेरिवेटिव्स में वेरी करेंगे. Barbituric acid was discovered in the mid 19th century with the first medical barbiturate barbitone being synthesized in 1903. फर्स्ट कौन सा है? बारबीटोन, जो आया 1903 में. फिर है फिनोबार्बिटोन, was introduced as a pharmaceutical in 1912. 1912 में कौन सा है? फिनोबार्बिटोन, कि जो आज भी यूज होता है. फिर थेराप्यूटिकली these drugs are used as a sedative, anesthetics and anticonvulsants. सीडेशन के लिए यूज होती है, एनेस्थेसिया में यूज किए जा सकती है, या तो फिर एंटी कन्वर्जन, मतलब कि टू ट्रीट कन्वर्जन मींस एंटी एपिलेप्टिक. Phenobarbital is also used in the treatment of the epilepsy. During the course of the mid 20th century, increasing knowledge was gained about the side effects and dependence related problems associated with the barbiturates abuse. Over 2,500 barbiturates have been reportedly been synthesized, with more than 50 of these presently marketed for the clinical use throughout the world. 12 of these are subject to the international control under the Convention of Psychotropic Substance 1971. कन्वेंशन ऑन साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1971 हमने देखा था ड्रग ऑफ अब्यूज के वीडियो में. वहां पे शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 एंड शेड्यूल 4. तो बारबीट्यूरेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 शेड्यूल, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 एंड शेड्यूल 4. तो शेड्यूल 2 में है सेकोबार्बिटल, शेड्यूल 3 में है एमोबार्बिटल, ब्यूटालबिटल, साइक्लोबार्बिटल एंड पेंटोबार्बिटल, एंड शेड्यूल 4 में है एलोबार्बिटल, बार्बिटल, फिनोबार्बिटल एक्सेट्रा. In recent years, there has been a significant downturn in prescribing and therefore the general availability of barbiturates owing to their side effects and associated dependency problem. An exception, an exception in phenobarbital, which is still used as an anticonvulsant and epileptic. Phenobarbital or phenobarbital is still used as an anticonvulsant or anti-epileptic medicine. Barbiturates are derivatives of barbituric acid. They can be used as hypnotics, sedatives, anticonvulsants, and anesthetics, although they are probably most familiar as sleeping pills. Barbiturates are hypnotics and sedatives. So, because of these properties, it can be used as a sleeping pills, and it is most familiarly known as the sleeping pill. The different properties of the various barbiturates depends upon the side group attached to the ring. जैसे मैंने बोला था स्ट्रक्चर में कि फिफ्थ पोजीशन पे दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं. ये फिफ्थ पोजीशन है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है R1, R2. तो ये हर एक बारबीट्यूरेट्स में वेरी करेंगे, तो उसके हिसाब से प्रॉपर्टीज भी वेरी करेंगे. तो बारबीट्यूरिक एसिड वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द जर्मन केमिस्ट
एडोल्फ वॉन बेयर इन 1864। बार्बिटूरिक एसिड फर्स्ट किसने सिंथेसाइज किया था? जर्मन केमिस्ट एडोल्फ वॉन बेयर इन 1864 बाय कंबाइनिंग द यूरिया प्लस मेलोनिक एसिड। यूरिया प्लस मेलोनिक एसिड and gives barbituric acid. The medical value of this substance were not realized. However, in until 1903, when two other German chemists, Emil Fischer and Joseph von Mering, discovered that one of this compound, diethyl barbituric acid, was very effective in putting dogs to sleep. It is said that von Mering proposed that the new substance called be veronal. जोसेफ वॉन मैरिंग ने नाम सजेस्ट किया वेरोनाल बिकॉज द मोस्ट पीसफुल सिटी और मोस्ट पीसफुल प्लेस ही न्यू ऑन द अर्थ वाज द इटालियन सिटी ऑफ वेरोना। वेरोना नाम की एक सिटी थी कि जो मानता था कि ये मोस्ट पीसफुल प्लेस है ऑन द अर्थ, तो उसने ड्रग का नाम रख दिया वेरोनाल बिकॉज इट इज यूज फॉर सिडेशन एंड हिप्नोटिक्स एंड प्रोड्यूसिंग कामनेस। Now let's say classification of barbiturates. Barbiturates are classified into four categories: long action, intermediate action, short action, and ultra short action. So let's say long action. So long action barbiturates have effects for 8 to 12 hours. Effects for 8 to 12 hours and fatal dose is 3 to 4 grams. Example are phenobarbital and mefobarbital. Then intermediate action. So intermediate action effects for 4 to 8 hours. Fatal dose 2 to 3 gram. Example amylobarbital. Third one is short action. So effects for 2 to 4 hours. Fatal dose 1 to 2 gram. Example butobarbital. And ultra short action. Effects for very shorter duration. Act as a general anesthetic. जो अल्ट्रा शॉर्ट एक्शन है वो वेरी शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए इफेक्ट देता है, इसकी वजह से इट कैन बी यूज एज अ जनरल एनेस्थेटिक्स एंड फेटल डोज कैन बी 1 ग्राम एंड एग्जांपल इज सोडियम थायोपेंटाल और थायोपेंटल सोडियम कि जो नार्को एनालिसिस में भी यूज किया जाता है। ये हमने देख लिया 4 टाइप्स के बार्बिटरेट्स: लॉन्ग एक्शन, इंटरमीडिएट एक्शन, शॉर्ट एक्शन एंड अल्ट्रा शॉर्ट एक्शन। डिफरेंट डेरिवेटिव्स ऑफ बार्बिटूरिक एसिड। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। फिफ्थ पोजीशन पे R1 एंड R2 है। इफ R1 एंड R2 इज इक्वल टू H तो वो होता है बार्बिटूरिक एसिड। फिर बार्बिटाल में डाइइथाइल बार्बिटाल है, एमिनो बार्बिटाल है, पेंटो बार्बिटाल है, फिनो बार्बिटाल है और यहाँ पे स्ट्रक्चर्स दिए हैं। Phenobarbital is still used in field of medicine to treat convulsion and epilepsy. एक्सट्रैक्शन ऑफ बार्बिट। अब हमें सैंपल मिल गया है, सीज कर लिया है, तो एनालिसिस करने के लिए हमें पहले सैंपल को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो बार्बिटरेट्स इन either free acid or salt forms are readily soluble in the methanol, and thus this is the solvent of choice for the extraction in qualitative analysis. बार्बिटरेट्स दो फॉर्म में हो सकता है, या तो फ्री एसिड फॉर्म या तो सॉल्ट फॉर्म, और दोनों फॉर्म में वो रेडिली सॉल्युबल है इन मिथेनॉल। सो मिथेनॉल कैन बी यूज्ड एज अ चॉइस फॉर चॉइस ऑफ सॉल्वेंट फॉर द एक्सट्रैक्शन in qualitative and as well quantitative analysis. To extract a non-mass of the dose form is dissolved in a volume of methanol to provide the drug component at a working concentration of between 1 to 20 mg per ml. The extract should be filtered or centrifuge prior to analysis in order to remove any unwanted particulate materials. For quantitative analysis, ethyl acetate can be used as an extraction solvent. क्वालिटेटिव के लिए क्या था? मिथेनॉल। एंड क्वांटिटेटिव के लिए है ethyl acetate. And if the drug is in the free acid form with the extract treated in the same way as described above. And if the original material is in the salt form, then the drug can be converted to the free acid form and extracted if required. तो अगर ड्रग फ्री एसिड फॉर्म में, तो जो हमने सेम प्रोसीजर की थी क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए वही सेम फॉलो होगी। बट अगर
हमारी ड्रग जो है वो सॉल्ट फॉर्म में है, तो पहले उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्री एसिड फॉर्म में, उसके बाद एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, जो एज पर अबव प्रोसीजर है। Effects of barbiturate. So effects can be divided into two categories: physical effects and psychological effects. So physical effects में sleepiness, nausea, slurred speech, breathing disorder, reduced sex drive and coma. Psychological effects में mild euphoria, disinhibition, memory impairment, increased irritability, severe paranoia and suicidal thought. आप यहाँ पे देखोगे तो सभी जो इफेक्ट्स है वो है डिप्रेशन से, depression of PNA, because barbiturates are depression, which depresses the function of brain and CNS. Use of barbiturates. So epilepsy or convulsion, the drug of choice is phenobarbital. Phenobarbital is used for epilepsy and convulsion. Anesthesia, thiopental is used as the anesthetic agent. Sodium thiopental. Used as a hypnotic, used as a anxiolytic. Anxiolytic means any drug which are used to reduce the anxiety, and also used as a sedative to induce sleep. So sleeping pills, and used in the treatment of psychosomatic disorders. Preparation of barbiturate standard and sample solution. तो एनालिसिस के लिए हमें स्टैंडर्ड सोल्यूशन भी चाहिए होगा और सैंपल भी चाहिए होगा, ताकि हम सैंपल का कंपेयर कर सके स्टैंडर्ड से। तो दोनों के लिए हमें 1 mg/ml वर्किंग सॉल्यूशन बनाना है। डाइल्यूट टू वॉल्यूम विद द मिथेनॉल, हमें मिथेनॉल में उसको सैंपल सॉल्यूशन या स्टैंडर्ड दोनों मिथेनॉल में बनाने हैं, क्योंकि हमने देखा कि बार्बिटूरेट्स आर readily soluble in methanol. This talc solution is stable for at least 3 months when stored at 20 degrees Celsius. फिर बार्बिटूरेट सैंपल सॉल्यूशन, तो वो भी 1 mg/ml कॉन्सेंट्रेशन का वर्किंग सॉल्यूशन बनाना है, and depending on the provenance of the sample, any undissolved solid particle can be removed by the filtration or sonication. अगर आप बार्बिटूरेट्स का सैंपल सॉल्यूशन बना रहे हो और और सपोज आपने 1 mg/ml बनाया, एंड इफ उसमें कुछ अनडिजोल्व सॉलिड पार्टिकुलेट्स है, तो फिल्ट्रेशन से उसको रिमूव करना पड़ेगा या तो फिर सोनिकेशन। Now let's see forensic analysis of barbiturates. In the forensic analysis of barbiturates, two types of tests are there: presumptive test and confirmatory test. Presumptive test are also known as preliminary test. तो उसमें है solubility and pH determination, and also आगे उसमें बहुत सारे टेस्ट है। तो पहले हम देखते हैं solubility। तो solubility टेस्ट के लिए हमें क्या करना है, दो टेस्ट ट्यूब लेना है। टेस्ट ट्यूब ए, एक को मार्क करो टेस्ट ट्यूब ए एंड दूसरे को टेस्ट ट्यूब बी। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में सेवरल ड्रॉप्स ऑफ वाटर एंड सेकंड में सेवरल ड्रॉप्स ऑफ इथाइल एसीटेट, एंड उसमें थोड़ा सा सैंपल ऐड कर। अब देखो कि जो आपका सैंपल है वो किस में डिसॉल्व हो रहा है। अगर आपका सैंपल फ्री एसिड फॉर्म में होगा तो वो इजीली सॉल्युबल हो जाएगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज इथाइल एसीटेट में, बट आर इनसॉल्युबल इन वाटर। मतलब कि अगर आपका जो बार्बिट्यूरेट है वो अगर फ्री एसिड फॉर्म में होगा तो वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज इथाइल एसीटेट में इजीली सॉल्युबल हो जाएगा, लेकिन वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। एंड इफ द barbiturates are in salt form, at that time it is readily soluble in water but are insoluble in the organic solvent such as ethyl acetate. फ्री एसिड होगा तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज इथाइल एसीटेट, एंड सॉल्ट फॉर्म होगा तो वाटर। तो आपको इससे ये पता चलेगा कि आपका बार्बिट्यूरेट्स है वो
कौन से फॉर्म में, या तो फ्री एसिड फॉर्म में या तो फिर सॉल्ट फॉर्म में। सेकंड इज द पीएच डिटर्मिनेशन। तो पीएच डिटर्मिनेशन के लिए क्या करना है, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल in a test tube and add 1 ml of water. Then determine the pH using the pH paper or pH meter. If a pH greater than 8, अगर pH greater than 8 है तो it indicates the barbiturate is present as a sodium or calcium salt. अगर मैं pH चेक करता हूँ और मुझे मिली pH greater than 8, so I can say that it is present as a sodium or calcium salt. प्रिजम्पटिव टेस्ट और बायोटिक्स में कलर टेस्ट भी होती है, तो हम कलर टेस्ट से पता कर सकते हैं कि बार्बिट्यूरेट्स प्रेजेंट है कि नहीं। तो फर्स्ट टेस्ट इज डायल कोपानई टेस्ट। उसमें दो रिएजेंट यूज होते हैं। तो पहले हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ रिएजेंट। तो रिएजेंट इज कोबाल्ट एसीटेट सॉल्यूशन एंड अदर इज आइसोप्रोपाइल अमाइन सॉल्यूशन, आईपीए। तो पहला प्रिपरेशन हम देखते हैं, कोबाल्ट एसीटेट सॉल्यूशन प्रिपरेशन। टेक 1 ग्राम ऑफ कोबाल्ट एसीटेट टेट्राहाइड्रेट एंड डिसोल्व इट इनटू 100 ml ऑफ मिथेनॉल। क्या करना है, 1 ग्राम कोबाल्ट एसीटेट लेना है और उसको 100 ml मिथेनॉल में डिसोल्व करना है, प्लस उसमें 0.2 ml ऑफ एसिटिक एसिड ऐड करना है। 1 ग्राम कोबाल्ट एसीटेट लो, उसको 100 ml मिथेनॉल में डिसोल्व करो, प्लस उसमें 0.2 ml एसिटिक एसिड ऐड करो, तो ये हमारा बन गया कोबाल्ट एसीटेट सॉल्यूशन। एंड द सेकंड रिएजेंट इज आइसोप्रोपाइल अमाइन सॉल्यूशन। So take 5 ml of IPA or isopropyl amine and mix with the 100 ml of the methanol. अब हमने रिएजेंट्स प्रिपेयर कर दिया, अब हम प्रोसीजर देखते हैं कि कैसे परफॉर्म करना है। तो प्रोसीजर वन, ये कहता है स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सट्रैक्टेड मटेरियल लो और उसको स्पोर्ट प्लेट में रखो। उसके बाद एड 3 to 4 ड्रॉप्स ऑफ द कोबाल्ट एसीटेट सॉल्यूशन एंड देन 3 to 4 ड्रॉप्स ऑफ द आइसोप्रोपाइल अमाइन सॉल्यूशन। Then the appearance of purple or blue violet color indicates the presence of particles. प्रोसीजर वन क्या है, एक स्पोर्ट प्लेट लो, उसमें एक्सट्रैक्टेड मटेरियल जो हमने किया है बायोटिक्स का, उसको स्मॉल अमाउंट में वहां पे प्लेस करो। उसके बाद 3 to 4 ड्रॉप्स कोबाल्ट एसीटेट सॉल्यूशन ऐड करो। देन आइसोप्रोपाइल अमाइन सॉल्यूशन का भी 3 to 4 ड्रॉप्स ऐड करो। एंड आफ्टर द vigorous shaking, color will change from colorless to purple or blue violet, which means barbiturates are present. एंड प्रोसीजर टू हम देखते हैं, द रेसिड्यू ऑफ एक्सट्रैक्ट ऑफ सैंपल इज टेकन इन 1 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म। जो हमने एक्सट्रैक्ट किया है सैंपल, उसको लेना है 1 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म में। टू अ पोर्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्ट ऑफ द सैंपल 2 ड्रॉप्स ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड 1% कोबाल्ट एसीटेट इन मिथेनॉल इज एडेड। क्या करना है, क्लोरोफॉर्म में हमने सैंपल ले लिया, उसमें 2 ड्रॉप्स ऐड करने हैं ऑफ व्हाट, 1% कोबाल्ट एसीटेट इन मिथेनॉल, मतलब कि जो रिएजेंट ए है वो। इज फॉलो बाय 1% लिथियम हाइड्रोक्साइड इन मिथेनॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप। उसके बाद मुझे ऐड करना है 1% लिथियम हाइड्रोक्साइड इन मिथेनॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप। एज अ रिजल्ट, ब्लू रिंग एट द जंक्शन। इफ अगर सैंपल मेरा बार्बिट्यूरेट्स है तो एट द जंक्शन ब्लू रिंग विल बी अपीयर। तो उससे मुझे पता चलेगा कि सैंपल मेरा बार्बिट्यूरेट्स है कि नहीं। देन द सेकंड टेस्ट इज ज्विकर टेस्ट। So first take the residue of extract in 1 ml of chloroform, then add 2 to 3 drops of 0.5 ml 5% pyridine in chloroform, and second, the color of chloroform layer becomes purple. Then 1 drop of glacial acetic acid is added. क्या करना है आपको, जो रेसिड्यू आपने एक्सट्रैक्ट किया है उसको 1 ml क्लोरोफॉर्म में लो, डिसोल्व करो, उसमें 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ 0.5 ml ऑफ 5% pyridine ऐड करो। देन द कलर ऑफ क्लोरोफॉर्म लेयर बिकम्स पर्पल, वो लेयर पर्पल कलर का बन जाएगा। देन उसमें 1 ड्रॉप ऑफ GAA ऐड करो, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, एंड इफ द कलर ऑफ द क्लोरोफॉर्म लेयर चेंजेस फ्रॉम पर्पल टू वीक ब्लू,
क्या था, क्लोरोफॉर्म लेयर बन गया पर्पल। एंड उसके बाद हम 1 ड्रॉप ऑफ GAA ऐड करेंगे। एंड GAA ऐड करने के बाद अगर कलर पर्पल से वीक ब्लू हो गया, इट मीन्स द प्रेजेंस of non-thiobarbiturates is indicated. And if the chloroform layer becomes green after adding the pyridine in chloroform, the presence of thiobarbiturates is indicated. Result: so this green color changes to light green on adding acetic acid. और जो ग्रीन कलर चेंजेस हुआ लाइट ग्रीन में, तो मतलब कि थायोबार्बिट्यूरेट्स प्रेजेंट है। और ये है नॉन थायोबार्बिट्यूरेट्स के लिए। नॉन थायोबार्बिट्यूरेट्स के लिए कौन सा कलर मिलेगा, पर्पल टू वीक ब्लू। एंड थायोबार्बिट्यूरेट्स के लिए green color changes to light green. Then TLC of the barbiturates. So in this case, the TLC system most commonly employed using a silica gel, plates and mobile phase of ethyl acetate, methanol and 25% ammonia. Barbiturates का TLC परफॉर्म करने के लिए हमें मोबाइल फेज लेना है, इथाइल एसिटेट, मिथेनॉल एंड 25% अमोनिया इन रेशियो ऑफ 85:10:5 बाई वॉल्यूम। देन हमें प्लेट TLC सेट लेनी है, उसको सैंपल स्पॉट करना है, देन उसको मोबाइल फेज में डेवलप करने के लिए रखना। एंड देन फॉर द विजुअलाइजेशन ऑफ barbiturates, you can use UV chamber or other reagents such as reagent 1 is 0.1 gram of diphenyl carbazane in 50 ml of methanol and 0.1 gram of mercury chloride in 50 ml of methanol. The use of these reagents will also change the color and you can get idea about the barbiturates were present or not. Then the confirmatory analysis of the barbiturates. ये जो हमने टेस्ट देखी, Zwicker टेस्ट, डायल कोपेनाइट टेस्ट, TLC, ये सब है प्रिलिमिनरी और प्रिजम्पटिव एनालिसिस ऑफ द बार्बिट्यूरेट्स। पर कंफर्मेटरी एनालिसिस भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं। तो बोथ बार्बिट्यूरेट्स एंड बेंजोडाइजेपाइन्स कैन बी आइडेंटिफाई यूजिंग द GCMS methodology, although each drug class requires a different pre-treatment routine prior to analysis. GCMS analysis of the barbiturates. So due to their high polar nature, barbiturates are highly polar in nature, so barbiturates require derivatization prior to analysis by GCMS. बार्बिट्यूरेट्स हाईली पोलर इन नेचर है, तो उसके लिए हमें डेरिवेटाइजेशन करना पड़ेगा प्रायर टू एनालिसिस बाय GCMS. द डेरिवेटाइजेशन प्रोसीजर यूजिंग 0.2 मोलर ट्राइमिथाइल एनिलीन हाइड्रोक्साइड इन मिथेनॉल. किससे करना है डेरिवेटाइजेशन? 0.2 मोलर ट्राइमिथाइल एनिलीन hydroxide in methanol is in principle the same as that used for the other pre-column derivatives. ये मेरे बार्बिट्यूरेट्स का स्ट्रक्चर है, BRBS प्लस यहाँ पे ऐड किया 0.2 मोलर ट्राइमिथाइल हाइड्रोक्साइड इन मिथेनॉल, तो डेरिवेटाइजेशन हो जाएगा। तो ये है डेरिवेटाइज बार्बिट्यूरेट्स। यहाँ पे क्या हुआ है, एन मिथाइलेशन। एन मिथाइलेशन मतलब कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जहाँ पे NH ग्रुप था वहां पे NCH3 ग्रुप आ गया, तो उसको हम बोलेंगे एन मिथाइलेशन। अब हमने डेरिवेटिव कर दिया, उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे बार्बिट्यूरेट्स का GCMS। तो उसके लिए कॉलम दी गई है, जो कॉलम वेरी करेगी हर एक इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से। इंजेक्शन टेम्परेचर, तो इंजेक्शन टेम्परेचर शुड बी 290 डिग्री सेल्सियस। फिर है कॉलम ऑन टेम्परेचर प्रोग्राम, तो 200 डिग्री सेल्सियस नो होल्ड इंक्रीज टू 260 डिग्री सेल्सियस एट 4 डिग्री सेल्सियस पर मिनट। क्या करना है, स्टार्टिंग में मुझे 200 डिग्री सेल्सियस रखना है, होल्ड नहीं करना है, एंड ग्रेजुअली मुझे इंक्रीज करना है अप टू 260 डिग्री सेल्सियस बाय द रेट ऑफ 4 डिग्री सेल्सियस पर मिनट। एंड कैरियर गैस यूज करूंगा हाइड्रोजन और हीलियम, और जिसका फ्लो रेट होगा 1 ml पर मिनट।
for the better separation, hydrogen will be used. But we all know that hydrogen is explosive in nature, so helium will be used. But helium has a disadvantage that it is a very expensive. And detector, so mass spectrometric temperature and settings are required to detect the barbiturates. Then the quantification of barbiturates by the HPLC. With the help of color test or presumptive test, we can get idea of the qualitative analysis. But for the quantification of barbiturates, we can done by using HPLC. So barbiturates can be prepared for HPLC analysis by dissolution of drug sample in methanol at a chosen concentration, followed by removal of any solid particulate matter by the filtration. मैंने बारबीट्यूट्स का वर्किंग सॉल्यूशन बना दिया पीपीएम में 2 ppm 10 ppm 100 ppm ऐसे कुछ भी सैंपल जो मुझे बनाने वो मैंने बना दिए फिर अब मुझे देखना है कि सब पार्टिकुलेट्स डिजोल्व हो गए हैं नहीं अगर नहीं हुए तो या तो फिल्टर करो और सोनिकेट करो और उसके बाद एचपीएलसी परफॉर्म करो तो क्रोमेटोग्राफिक कंडीशन यहाँ पे दी गई है कॉलम है यहाँ पे स्फेरिसॉल्व ओडीएस octadecylsilane and इसका इनर डायमीटर दिया गया है 25 सेंटीमीटर इंटू 4.6 mm एंड पार्टिकल साइज है 5 माइक्रोमीटर मोबाइल फेस है 40% ACN इन वाटर फ्लो रेट है 1 ml per minute इंजेक्शन वॉल्यूम है 5 to 10 माइक्रोलीटर एंड डिटेक्शन इज डन बाय यूवी एट 235 नैनोमीटर क्यों क्योंकि लैम्बडा मैक्स विल बी 235 nanometer. Such a system can be used to quantify barbiturates with relatively short alkyl substitute at the C5 position. C5 पोजीशन पे अगर शॉर्ट अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स है तो ये मेथड हम यूज कर सकते हैं लेकिन द एनालाइट्स विल सेपरेट इल्यूटिंग इन ऑर्डर टू द लिपोफिलिसिटी एग्जांपल बार्बिटोन ब्यूटाबार्बिटोन एंड पेंटोबार्बिटोन एंड जैसे ही लेंथ ऑफ अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स बढ़ेगी एट द C5 पोजीशन एट दैट टाइम मुझे मोबाइल फेज में एसीएन का रेशियो बढ़ाना पड़ेगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एनालिसिस ऑफ कंट्रोल फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस और कंट्रोल फार्मास्यूटिकल ड्रग एंड स्पेशली बेंजोडाइजेपाइन so in this video we have covered what is control pharmaceutical substance what are barbiturates different types of barbiturates classification of barbiturates forensic analysis of barbiturates in forensic analysis we have seen two methods preliminary or presumptive and confirmatory analysis of the barbiturates so if you like the video please hit the like button and subscribe our channel and notes will be given in the description below thank you